Hi everyone, a very good evening. In the second session of the earlier devotees of Raman Maharishi. Today, these two devotees which I'm taking up are very interesting, and they both have a very different life, and how they connected with Raman Maharishi is very interesting. So in continuation to yesterday's one, I'm just taking up the devotee naming Ganpati Sastri. Ganpati Sastri is one of the best devotees of Raman Maharishi, and his another name is there, which is Ganpati Muni. He was also is like one of the sage, इसलिए उनको गणपति मुनि बोला जाता था. And he was one of the very good extempore poet. Extempore in the sense कि he stands somewhere and he immediately start reciting the poems without any preparation or anything. He was titled as काव्य कंता. काव्य कंता वो जिनके थ्रोट में ही बोला जाता है कि पोइट्री का वास है, एंड ही वाज वन ऑफ द वेरी एमिनेंट संस्कृत पोइट्स. और वो अगर वो कहीं पे कुछ अटेंड भी करते थे इन स्कूल्स और इन सर्टेन पोइट्री सेशंस एंड ऑल, तो ही वाज लाइक सो इम्प्रॉम्प्टू कि वहीं मोमेंट पे एट ए मोमेंट वो पोएम्स रिसाइट करनी शुरू कर देते थे. ही वाज सच अ ब्रिलियंट मैन. उनकी बहुत सारी पोइम्स, बहुत सारे उनके संस्कृत की वर्डिंग्स उनकी मॉडर्न राइटर्स के सामने भी आई, सब कुछ आया. And he was one of the what we say is a spiritual master for many people. But there was a point when he was so confused in this thing ki what exactly is the spirituality and what exactly is the ambition, और उनको ये नहीं पता था कि वो क्या आगे इस पे करेंगे. He was so much confused in all these things. He turned so much towards God to seek success, और उनको फेमस होने का बहुत ज़्यादा ये था कि वो बिल्कुल बहुत फेमस होना चाहते हैं. But with all his worldly things and of this kind of things that he is the doer, अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा. तो उनकी ये illusion I am the doer वाली उनको ग्रेस और सक्सेस से दूर कर रही थी, बहुत ज्यादा दूर कर रही थी, बिकॉज ही वाज सो मच इनटू डूअरशिप. दिस इज इंटरेस्टिंग दैट बिफोर द बर्थ ऑफ श्री भगवान, just 1 year before that, he had a birth in 1878. और उस टाइम पे उनके फादर बनारस में थे, और उनके सामने लॉर्ड गणपति की फोटो थी. एंड ही वाज हैविंग दिस विजन कि उनके सामने एक बच्चा चल के आ रहा है, एंड दैट्स हाउ ही नेम्ड हिज चाइल्ड एज अ गणपति. Since the childhood till the time of 5 years, गणपति was completely dumb. वो उनको नहीं पता होता था कि what exactly is going on in the world. He was not like a normal child, because he was having a disease of having fits all the time. उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे और वो बेहोश होके गिर जाते थे. Till the age of 5 he was going through all these things. But on the other side he was a very promising child. उनका future काफ़ी bright था. Somehow he got cured. Cure भी उनका कैसे हुआ कि पुराने टाइम पे जैसे किसी का नेम बॉडी पे एनग्रेव करने के लिए रेड हॉट जो आयरन होती है जिसके ऊपर इनिशियल लिखा होता है वर्ड का, तो उनका इनिशियल जो जी है गणपति का जी, उस रेड हॉट आयरन से उनकी बॉडी के ऊपर एनग्रेव कर दिया गया. द मोमेंट दे एनग्रेव्ड द जी ऑन द बॉडी, गणपति गॉट क्योर्ड with the help of that red hot iron. And the moment he got cured, he started showing his brilliance to the entire world, because at just at the age of 10 years he started writing many Sanskrit poems, Sanskrit books and everything. And
at that along with that he also started preparing the astrological chart. वो चार्ट जो usually follow, which is known as a jantri, जो पूरे साल का one go में बन जाता है, and we start following that. At the age of 10, along with the Sanskrit wordings and all, he prepared that astrological chart also. And by that time, उन्होंने बहुत ज़्यादा संस्कृत और ग्रामर को मास्टर कर लिया हुआ था, and that was just at the age of 10 years. When he entered into age of 14, उन्होंने बहुत सारे पंचकाव्यास बुक्स संस्कृत की याद कर ली थी, और उनको वो बिल्कुल ओरली ही वाज सो प्रो इन दैट. फिर उन्होंने रामायण भी पढ़ा, पूरा महाभारत भी पढ़ लिया, और उन्होंने बहुत सारे पुराणास भी पढ़ लिए. एंड ही वाज वन ऑफ द वेरी फ्लुएंट संस्कृत राइटर्स एट द एज ऑफ 14 ओनली. जैसे रमन महर्षि की मेमोरी, ऑल वी नो दैट इट वाज सो मच फिनोमिनल कि वो अगर कुछ पढ़ते थे या कुछ बोलते थे या कहीं भी कुछ भी अगर देख भी लेते थे तो उनको वो हमेशा याद रहता था. सिमिलरली इट वाज लाइक विद गणपति ऑल्सो, दैट ही अगर वो एक चीज कहीं देख लेते थे या पढ़ लेते थे तो वो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता था. सिमिलरली उनकी एक ऐसी एबिलिटी एक और थी जो सिमिलर, which was also similar to Raman Maharishi, which is Ashtavandana. The meaning of this is giving his attention to a number of different things at the same time. The way we say that we all are multitaskers. एक ही टाइम पे हमारी attention बहुत सारी तरफ होती है, and we do a number of things in a one go at a same time. We all ladies are meant for multitasking. So this man Ganpati was also having this ability in him. When he was at the age of 18, उस टाइम पे उनको बहुत सारे ऋषि मुनियों की स्टोरीज वो पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे. और फिर at the age of 18 only he got married. When he got married, he started traveling all over India. बहुत सारी sacred places पे वो जाते थे, बहुत सारे मंत्रास चैंट करते थे, जप करते थे, तपस करते थे. At the age of 18 only. And in 1900, he attended one of the meeting of Sanskrit Pandits in Bengal at a place named Nadia. There, in that meeting, he was invited on the stage for his poems and everything, and there again he showed his brilliance to the entire world because of his impromptu reciting of the poetry. And there again, he got the title of Kavyakanta. With this everything, वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गए, जो उनका एक हमेशा से एक सपना था कि वो बहुत फेमस होना चाहते हैं. तो with all these things, अलग अलग मीटिंग्स और ऑल ओवर इंडिया घूम के वो अपनी कविताओं का सबको सुनाते थे, उनके साथ सबके साथ बैठ के मंत्रस जाप करते थे, सब कुछ करते थे. तो एंड somehow he started getting famous all over. In 1903, he got a chance to visit Tiruvannamalai, and he twice visited Raman Maharishi on the Arunachala hill. और फिर उसके कुछ टाइम बाद उनको विलौर में स्कूल टीचर का एक जॉब मिल गया, which was very few hours rail journey from तिरुवन्नमलाई. वहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया जिसमें उनके डिसाइपल्स थे, जो उनसे पावर की या शक्ति की ट्रेनिंग लेते थे और उनके साथ बैठ के मंत्रास रिसाइट करते थे. और वो सब ये चाहते थे कि जैसे वो मंत्र जाप करते हैं, उनके अंदर एक शक्ति का प्रवाह हो, सो दैट वो उस पूरी शक्ति के थ्रू नेशन का अपलिफ्टमेंट कर पाए. सभी लोगों के साथ वो उनको समझाएं व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी एंड पावर थ्रू विद द हेल्प ऑफ मंत्रास एंड जाप एंड एवरीथिंग. दे वांटेड टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एंड मेक देम अवेयर कि एनर्जीज क्या होती हैं. वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उस स्कूल में नहीं रह पाए, बिकॉज वो अगेन 1907 में वापस आए तिरुवन्नमलाई,
और उस टाइम तक उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ चुके हुए थे गणपति जी के अंदर। ऑल ओवर उनके सारे डिसाइपल्स थे, बट ही वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद हिज दैट लाइफ। वो फेमस भी हो चुके थे, इवन देन देयर वाज नो सेटिस्फैक्शन, बहुत सारे डाउट्स में वो घिर चुके थे। और वो ऑलमोस्ट अपनी एज के एक मिडल जिंदगी के एक मिडिल पड़ाव पे आ चुके थे, एंड ही वाज so much prone reciting the mantras and doing jap and tapas, but even then he was not able to attain that grace of God which he was longing since his childhood. तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि अपनी लाइफ के एक डेड एंड पे आ गए हैं। फिर जब कार्तिक का फेस्टिवल होता है तिरुवनमलाई में, उसके 9th डे पे वो रमन महर्षि के पास अरुणाचला पर्वत पे गए। उनको पता था कि वहां जाते ही उनको उनके क्वेश्चंस के, डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे वो वहां पहुंचे, उनको पता चला कि भगवान वाज देयर सिटिंग ऑन द हिल, एंड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग इन द मिडल ऑफ द डे, बिल्कुल तेज धूप में वो जल्दी से पहाड़ चढ़ गए, अरुणाचला पर्वत को चढ़ गए और जाके सीधा वो भगवान महर्षि के चरणों में चले गए। एंड ही वाज लाइक, और उनके उनके feet, he collapsed with his hands and he started saying with complete emotions कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैंने सारे वेदांतास पढ़ लिए, मैंने बहुत जप किया, मैंने बहुत मंत्रास किए, मैंने बहुत तपस किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मुझे ग्रेस नहीं मिला भगवान का, मुझे रिफ्यूज नहीं मिला, मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिली। नाउ मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, सो दैट मुझे वो ग्रेस मिल पाए। He was saying all these things to Raman Maharishi with full emotion. कुछ टाइम तक रमन महर्षि उनको देखते रहे, कंप्लीट 15 मिनट तक बिना कुछ बोले। देन रमन महर्षि ने उनको बोला, if one watches whence the notion I arises, the mind is absorbed into that, and that is tapas. Means कि जब हम I, जो हमारा माइंड है, अगर हम अपने थॉट्स को वॉच करने शुरू कर देते हैं तो वो सबडी होने शुरू हो जाते हैं, और जब वो माइंड एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो जो रह जाता है, दैट इज नोन एज तपस। जब हम मंत्रस डिसाइड करते हैं, ही वाज सेइंग ऑल दिस टू गणपति, ही सेड कि व्हेन यू रिपीट द मंत्रस, जब आप उस सोर्स को देखना शुरू कर दो जहां से वो मंत्रस आ रहे हैं, तो आपका माइंड उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज तपस। With these two definitions, which or the words जो रमन महर्षि ने गणपति को बताए, ये सुनते ही उनके अंदर एक इतनी खुशी आ गई, उनको लगा कि उनके ऊपर भगवान का पूरा ग्रेस आ गया है। एंड ही वाज सो मच एक्साइटेड एंड सो मच हैप्पी इन दैट वे कि अब भगवान की वो शरण में आ गए हैं और उन्होंने अपना ग्रेस उनके ऊपर डाल दिया है। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग टू हिज फ्रेंड्स ऑल ओवर कि मुझे रमन महर्षि से बहुत कुछ मिल गया है, एंड आई एम हिज डिवोटी, एंड ही स्टार्टेड राइटिंग संस्कृत पोइम्स एंड उनको गणपति जी को पता चला पलेना स्वामी की थ्रू कि स्वामी जी जो अरुणाचला पर्वत पे बैठते हैं, उनका पूरा नाम क्या है। that person told him to Ganpati that उनका नाम वेंकटा रमन है, and Ganpati immediately declared him as the भगवान श्री रमना, as the महर्षि। उससे पहले उनका कोई भी नाम नहीं जानता था, सब लोग रमन महर्षि को स्वामी के नाम से जानते थे, जो एक अरुणाचला पर्वत पे बैठते हैं। And Ganpati ji gave him the name as a Bhagwan Sri Ramana, and later on it was Maharishi was added to it. So that's how Bhagwan Ramana got the name as Bhagwan Sri Ramana. बहुत टाइम तक ये नेम एज अ महर्षि सब में ऑल ओवर द लोकल पॉपुलेशन ऑल्सो वो फेमस हो गया, एंड एवरीबडी वो स्टार्टेड कॉलिंग हिम एज महर्षि।
और अगर कोई उनको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जैसे एड्रेस करता था तो वो उनको भगवान बोल देते थे. Bhagwan here is known as the divine or simply the god. He was so much graceful that people started calling him as a Bhagwan. गणपति जी उनको हमेशा एक थर्ड पर्सन की तरह लेते थे, इन द सेंस कि वो उनको अगर कहीं उनको ये भी बताना है, रमन महर्षि के लिए भी कुछ बताना है, तो he used to say him as a Bhagwan, not as Maharishi or not as Raman Maharishi. He used to take his name like a Bhagwan, and like as a third person he used to call him. एक दिन क्या हुआ कि उनकी बेटी स्कूल जा रही थी, एंड उसने कुछ पूछा उनसे, एंड ही गणपति जी इमीडिएटली सेड कि उनकी बेटी का नाम था किटी. गणपति जी इमीडिएटली सेड टू किटी, किटी अगर भगवान आपको याद है ना तो भगवान को भी आप याद हो. He was addressing Raman Maharishi over here because उनकी बेटी ने उनसे कुछ पूछा कि ये याद रहेगा या नहीं. So then he simply said, Kitty remembers Bhagwan and Bhagwan will remember Kitty. He was having so much respect and devotion for Raman Maharishi. अब उसके बाद क्या हुआ कि गणपति जी ने रमन महर्षि को लॉर्ड सुब्रमण्य की तरह एक मैनिफेस्टेशन की तरह उनको ले लिया, जबकि जो उनके डिवोटीज थे उन्होंने इस चीज को कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया कि रमन महर्षि किसी और का मैनिफेस्टेड किसी और का रूप नहीं है. और अगर वो किसी और का रूप हो, अगर फॉर एग्जांपल द वे ही सेड ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड सुब्रमण्य, कि अगर वो किसी और के अवतार हो तो वो हमें खुल के चीजें बताएं, हमें एक ऐसी जगह ना छोड़ दें कि हमें गेस करना पड़े. बिकॉज रमन महर्षि was never used to speak. He was known as a silent guru. He never used to write or do anything. So that's how people protested गणपति शास्त्री कि वो लॉर्ड सुब्रमण्य का अवतार नहीं है. फिर उन्होंने गणपति जी ने आंसर दिया कि अवतार होता क्या है. उन्होंने सबसे पूछा कि अवतार होता क्या है. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो अवतार है is only a manifestation of one aspect of God. भगवान के सिर्फ एक रूप का मैनिफेस्टेशन होता है, उसको हम अवतार बोलते हैं. और जो ज्ञानी होता है वो अपने आप में भगवान होता है, क्योंकि जिसने सेल्फ को समझ लिया उसको एनलाइटनमेंट हो गया, एंड दैट एनलाइटेंड सोल इन इटसेल्फ इज अ गॉड. देन लेटर ऑन गणपति जी को रमन महर्षि से मिले हुए 4 साल हो चुके थे. उसके बाद he was having lot of grace of Raman Maharishi which he always used to feel upon him. एक दिन वो गणपति जी एक दिन मेडिटेशन में बैठे हुए थे तिरुवोथ्यूर के एक मंदिर में, और वो मेडिटेशन करते करते एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गए. उनके माइंड में कुछ आया और वो एकदम से भटक गए, और उनको एकदम से लॉन्गिंग हुई कि वो भगवान श्री राम से मिलना चाहते हैं. वो the moment he said कि अब उनको भगवान रमन महर्षि से मिलना है, the moment he had the thought in mind, रमन महर्षि immediately उस टेम्पल में एंटर कर गए. He was so excited with this कि उन्होंने याद किया और रमन महर्षि सामने आ गए. And he then sat in front of him and they talked nothing. Just simply he was sitting there and getting his grace. जब वहां से रमन महर्षि उठ के जाने लगे, उन्होंने अपना एक हाथ गणपति जी के सर पे रख दिया. The moment he kept his hand on his head, Ganpati ji felt a very terrific vital force was going into his body with the touch of Raman Maharishi. उनको ये लगा कि आज तो मुझे भगवान के टच से भी ग्रेस मिल गया है, एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. कि पहले उन्होंने मुझसे बात करी, फिर उनकी ग्रेस मेरे ऊपर हमेशा रही, और आज उनके टच से भी मुझे ग्रेस मिल गई है. He was talking about this particular incident to many people. Then उसके बाद
Raman Maharishi was talking about this particular incident one day to his devotees, and he simply said कि एक दिन उनके साथ क्या हुआ कि he was just simply lying down और वो जग गए, और लेकिन उनको ये फील हुआ कि उनकी बॉडी धीमे 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 हवा में राइज कर रही है, एंड गोइंग हायर एंड हायर, एंड और जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल द वे वी फ्लाई, तो टेक ऑफ होने के बाद नीचे की सब चीजें बहुत छोटी नजर आती है और एक टाइम पे वो गायब हो जाती है. सिमिलरली रमन महर्षि वाज explaining this experience, and then after then he again came back into his body. उसके बाद जो physical objects थे वो again started appearing. Then he said कि उनको उस टाइम पे ये अवेयर हो गया कि ये वो शक्तियां हैं जो लोग यूजुअली कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सेजेस होते हैं, वो कोई ना कोई मिरेकल करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं और वो किसी को भी हवा में भेज देते हैं और वो उनको वापस ले आते हैं. And he said कि while the bodies were descending to the ground, it occurred to me that I was at Tiruvattur, though I had never seen the temple before. ये रमन महर्षि खुद बता रहे हैं when जब उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ. He said कि मैंने कभी उस मंदिर को तिरुवथुर में कभी नहीं देखा था, but I had this vision, and he went there, और वहां पे गणपति जी was already there waiting for him. बट इस चीज का ये हुआ कि रमन महर्षि ने खुद बोला कि शायद ये वही चीजें हैं, शायद ये वही मैजिकल पावर्स हैं जिनके बारे में लोग हमेशा बोलते हैं कि हम किसी साधु या किसी भी ऐसे पर्सन से मिले तो उन्होंने अपनी रिद्धि और सिद्धियों से हमारे ऊपर ये मैजिक कर दिया. बट भगवान, he himself was Bhagwan, knowing everything. He used to see everything before someone even say a word. He used to see everything in the dreams also. So he was not entertaining all such things which are happening all around the world. And because of this particular indifference, जो गणपति जी के साथ भी हुआ, he was not able to attain that particular grace which he was actually looking for. उनके अंदर हमेशा आई थॉट बहुत ज्यादा रहता था, डूअरशिप बहुत ज्यादा रहती थी, और उन्होंने पूछा एक दिन कि इज सीकिंग द सोर्स ऑफ आई थॉट सफिशिएंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑल एम्स और इन मंत्रा ध्यान. उन्होंने भगवान से ये बात पूछी कि जैसे ही मुझे आई थॉट का सोर्स पता चल जाएगा तो क्या मेरी सारी इंटेंशन या सारे जो मेरे एम्स है वो पूरे हो जाएंगे. बिकॉज ही वाज सो मच इनटू डूअरशिप, तो ही स्टार्टेड आस्किंग सच क्वेश्चंस टू रमन महर्षि. और भगवान ने उस पर सिंपली एक ही आंसर दिया कि आप अपने ऊपर जितना भी बोझ लेके चल रहे हो अपनी वासनाओं का और अपने डूअरशिप का, वो आप सारा भगवान पे डाल दो, अपने आप को फ्री कर लो इस बर्डन से, और फिर देखो कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो. उनका, भगवान महर्षि का कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप अपना बोझ भगवान को दे दो, कि आप अपने ऊपर से डूअरशिप को निकाल दो, एंड देन सी जब आप डूअरशिप हटा देते हो तो क्या रह जाता है. he was telling all this to Ganpati. Then in 1917 गणपति और उनके डिवोटीज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके भगवान रमन महर्षि के पास जाते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स एक बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, जिस बुक का नाम है श्री रमण गीता. एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर नोन ऑफ रमन महर्षि, जिसमें बहुत लॉजिकली हर चीज के आंसर्स कोट किए गए हैं. फिर उन्होंने गणपति जी ने एक क्वेश्चन ये पूछा कि जिन लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन अटेन हो जाता है, उनके पास क्या कोई स्पेसिफिक पावर्स आ जाती हैं टू फुलफिल देयर डिजायर्स. You see, in this entire episode, with every type of grace upon him, he was still so much into attaining his goals and aims and complete doership. Because every now and then he was asking the same question to Raman Maharishi in a different words.
देन रमन महर्षि उनको रिप्लाई करते हैं कि इफ द योगी दो स्टार्टिंग अपॉन योगा फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स gained knowledge in the meantime, he would not be unduly elated even though his desires were likewise fulfilled. मतलब कि जब कोई योगा करना शुरू कर देता है वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, बट ड्यूरिंग दैट होल कोर्स ही ऑल्सो अटेन्ड द नॉलेज ऑफ कंप्लीट योगा, और योगा के साथ क्या इफेक्ट्स होते हैं वो पूरा उनको नॉलेज गेन हो जाती है. बट इवन देन because of his all the desires, all the vasanas and everything, they were not able to complete their fulfillments, not able to get their desires to the complete fulfillment level. With all these answers, even Ganpati was say there on the same thing कि उनकी desires कब कैसे पूरी होंगी, अगर वो ये सब कुछ करते हैं तो पूरी होंगी या नहीं. फिर उसके बाद क्या हुआ कि गणपति वेंट बैक टू हिज विलेज इन 1934. ही वाज देयर एंड उनके विलेज का नाम था नीमपुरा जो खड़गपुर में है. वहां पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो उनके साथ पोइम्स भी रिसाइट करते थे, लिखते थे, सब कुछ करते थे. बट देन आफ्टर सम टाइम गणपति जी की डेथ हो गई, और उसके 2 साल बाद, उनकी डेथ के 2 साल बाद उनके कुछ डिवोटीज ने रमन महर्षि को क्वेश्चन किया, पूछा उनसे कि भगवान क्या शास्त्री गणपति शास्त्री जी को रियलाइजेशन हो गया था. एंड रमन महर्षि सिंपली सेड वन थिंग, हाउ कुड ही अटेन द रियलाइजेशन, बिकॉज उनके तो संकल्प ही बहुत स्ट्रांग थे, उनकी वासनाएं, उनका आउटर वर्ल्ड की चीजें बहुत इतनी स्ट्रांग थी कि सब कुछ होते हुए भी वो कभी उनको रियलाइजेशन नहीं हो सकता. So with this particular devotee's story, we can simply see this कि हमें अपनी desires, unwanted show off, all the things which we are carrying on us as a burden of world, कि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद नहीं होगा, या हम नहीं कुछ करेंगे तो शायद दुनिया चलनी बंद हो जाएगी. We just have to get rid of all these things. And with the help of a self-inquiry, we will start realizing all these things one by one. And we'll go towards Mon. We will stop fighting for silly things. We will, started realizing everything, that this world is nothing. We just have to search our own self, which is a true self. So this particular statement of Raman Maharishi, with this statement, this devotee Ganpati story ends here. I am just going ahead with another devotee whose name is F.H. Humphrey, and he is one of the and he is the first ever Western devotee of Raman Maharishi, जिन्होंने इंडिया में 1911 में लैंड किया. The moment he landed in India, he was having the concept of this occult in his mind. Occultism is something which is like कि magical powers के through कुछ भी gain कर लेना, जो एक particular religion के अंदर नहीं आते. He was so much into, the moment he landed in India, he was like having this thing in mind कि India is full of magical powers. When he came to India, he was only 21 years old, और उनकी वेलोर में पुलिस सर्विस में उनको जॉब मिल गई थी. तो वहां पे उनके एक ट्यूटर थे. he got engaged with one of the tutor whose name is नारासिम्हाया, जो उनको तेलुगु पढ़ाते थे. तो when he got his first lesson from Narasimhaya, he asked him that is there any book in English on Hindu astrology. नरसिम्हा को ये काफी वियर्ड लगा कि एक वेस्टर्न पर्सन हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बुक क्यों मांग रहा है, और अभी तो इनको इंडिया में आए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ. एंड ही जस्ट स्टार्टेड टेकिंग द लेसंस ऑन तेलुगु. बट नरसिम्हा ने कुछ नहीं कहा, एंड ही गेव हिम द बुक फ्रॉम वन ऑफ द लाइब्रेरीज which was based on Hindu astrology. And on the very first day, and on the very next day, Humphrey again asked his tutor a very, very astonishing question. Do you know any Mahatma here? यहाँ पे कोई ऐसा महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष हैं जिनसे मैं मिल सकता हूँ? नरसिम्हा ने उनको
सिंपली बोल दिया कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। देन हम्फ्री ने उनको बोला कि आपने मुझसे बोला था कि आप किसी गुरु को नहीं जानते, बट आज सुबह उठने से पहले मैंने देखा कि मैंने आपके गुरु को देखा। हम्फ्री वाज सेइंग दिस टू नरसिम्हा कि आपने तो बोला था कि आपके कोई गुरु नहीं है, लेकिन आज सुबह उठने से पहले मैंने आपके गुरु को देखा। वो मेरे साइड में आके बैठे और उन्होंने मुझसे कुछ बोला, लेकिन मैं वो समझ नहीं पाया। दिस हम्फ्री वाज सेइंग टू नरसिम्हा। लेकिन नरसिम्हा कुछ उनसे कन्विंस नहीं हुए एंड ही सेड, तो फिर हम्फ्री ने उनसे बोला, द फर्स्ट मैन फ्रॉम विलौर जिनको वो मिले थे बॉम्बे में, वो आप हो। नरसिम्हा को उन्होंने बोला। Narasimha started protesting that he had never been to Bombay, and then Humphrey explained him again that soon he arrived there. He had been taken to the hospital in a high fever. अब नरसिम्हा जी को was totally like in this thing कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो कभी बॉम्बे भी नहीं गया हूँ। एंड हम्फ्री said कि जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचे उनको इतना हाई फीवर था कि उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उनको उनको किसी भी मेडिसिन से उनका पेन रिलीफ करने से पहले ये क्या हुआ कि उनका माइंड ऑटोमेटिकली विलौर की तरफ डाइवर्ट हो गया। फिर उनको लगा कि उनको इमीडिएटली विलौर जाना है। एंड देन मोमेंट ही गॉट क्योर्ड फ्रॉम दैट इलनेस, ही लैंडेड इन विलौर। फिर वो, अब यहाँ पे ये पूरा कहानी ये है कि नरसिम्हा ना तो कभी बॉम्बे गए थे, ना उनको कभी कोई गुरु था, लेकिन हम्फ्री हाउ ही वाज सेइंग ऑल दिस थिंग because when he was in the hospital, the astral body of Humphrey traveled to Vellore और उन्होंने वहां पे नरसिम्हा को देखा with his guru। अब नरसिम्हा जी कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं पता कि एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, क्या वो अपनी ड्रीम्स की बातें कर रहे हैं। वो सो डैम कंफ्यूज्ड एंड ही सेड कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक फिजिकल बॉडी होती है, उसके अलावा मुझे और किसी बॉडी के बारे में नहीं पता। लेकिन इस चीज को समझने के लिए और टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम्फ्री को बहुत सारी फोटोग्राफ्स दे दी, सो दैट वो ये जान पाए कि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानते, ना उनको कोई गुरु है, ना कभी वो कहीं गए हैं, ना ही वो किसी एस्ट्रल बॉडी को जानते हैं। लेकिन हम्फ्री जी ने जब वो फोटोज देखी तो उन्होंने एक फोटो इमीडिएटली पिक करी जिसमें गणपति शास्त्री थे। एंड ही सेड टू नरसिम्हा, see this Ganpati Sastri, this man is your guru and I saw him with you on that day। नरसिम्हा सेड कि उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं कभी इनके पास नहीं गया। इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद हम्फ्री अगेन गॉट सिक और फिर उनको ऑटाक्यूमंड भेजा गया उनको फर्दर रिवाइव करने के लिए। और ये सारा एपिसोड तब हुआ जब वो विलौर वापस आए थे। जब वो वहां से वापस आए उन्होंने फिर से नरसिम्हा को कुछ पूछा और इस बार उनको एक स्केच दिखाया अरुणाचला पर्वत का, जो उनके ड्रीम में आया था, हम्फ्री के ड्रीम में। और उस अरुणाचला पर्वत के साइड पे एक नदी बह रही है और वहां पे उस एंट्रेंस पे एक सेज खड़े हुए हैं। दिस एवरीथिंग केम इनटू द ड्रीम ऑफ हम्फ्री और उसी ड्रीम का उन्होंने एक स्केच बना दिया जिसमें अरुणाचला पर्वत है, एक नदी बह रही है पर्वत के बगल में, और श्री रमण महर्षि, उनको नहीं पता वो कौन है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि उसकी एंट्रेंस पे एक सेज खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने नरसिम्हा जी ने बोला कि ये विरूपक्षा है। फिर उन्होंने हम्फ्री को श्री भगवान महर्षि के बारे में बताया और फिर उनको इंट्रोड्यूस किया गणपति शास्त्री से। Then in November 1911, Humphrey, Narasimha and Ganpati Shastri visited Tiruvannamalai together. And when
he had a first glimpse of Humphrey had a first glimpse of Raman Maharishi, he was so impressed by his silence, very much impressed by his silence. उन्होंने एक जगह लिखा, the most touching sight was the number of tiny children up to about 7 years of age. उन्होंने इतना, मैं हिंदी में बता देती हूँ, उन्होंने ये लिखा कि जब वो उस पर्वत पर पहुंचे, अरुणाचला पर्वत पर पहुंचे, वहां पे उनके लिए सबसे अमेजिंग दृश्य ये था कि जब उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो मात्र 7 साल के थे वहां पे बैठे हुए देखा, रमन महर्षि के साथ वो बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं बच्चे, कुछ कहीं कोई भी खेल नहीं रहा है, बस उनके साथ चुपचाप उनके साथ बैठे हुए हैं. एंड दिस कंप्लीट सीन हम्फ्री को बहुत इम्प्रेस कर देता है. जैसे गणपति जी का ये था कि वो हमेशा डुअरशिप में रहते थे और वो अपनी संस्कृत और अपने पोइम्स के थ्रू वर्ल्ड को चेंज करना चाहते थे, ऐसा ही सेम अर्ज हम्फ्री में थी. वो भी चाहते थे कि वो दुनिया को किसी तरह हेल्प करें और सो दैट एक अच्छी एक राह दिखा पाए टू द एंटायर वर्ल्ड. हम्फ्री पूछते हैं टू रमन महर्षि कि भगवान मास्टर, कैन आई हेल्प द वर्ल्ड? आगे से भगवान महर्षि कहते हैं कि हेल्प योरसेल्फ एंड देन यू विल हेल्प द वर्ल्ड. जब तक हम अपने अंदर को अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? बिकॉज जैसे हम खाली बर्तन से किसी को नहीं परोस सकते, सिमिलरली जब तक हम अंदर से खुद खाली हैं, हम किसी और की क्या हेल्प करेंगे? Then Humphrey asked another question to Bhagwan. I wish to help the world. Shall I need to be helpful? Shall I not be helpful? मैं करना चाहता हूँ हेल्प, तो मैं क्या हेल्प नहीं करूँ? Then Bhagwan said, yes, helping yourself, you help the world. You are in the world and you are the world. You are not different from the world, nor in the world different from you. He was like, आप अपनी हेल्प कर सकते हो तो आप दुनिया की हेल्प भी कर सकते हो, क्योंकि दुनिया आपसे अलग नहीं है और आप दुनिया से अलग नहीं है, क्योंकि आप खुद दुनिया हो और दुनिया आप ही का पार्ट है. Then Humphrey asked Bhagwan Maharishi, कि Master, can I perform miracles like Shri Krishna and Jesus did before? Because he was also into the influence of occultism, so he was asking such questions to Bhagwan कि भगवान मैं भी क्या miracles कर सकता हूँ श्री कृष्णा जी और जीसस की तरह? Then Bhagwan simply said कि did any of them, when he performed them, feel that it was he who was performing a miracle? उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि क्या उन्होंने कोई मिरेकल किए? अगर किए भी तो क्या उनको ये फील हुआ कि उसके पीछे भी एक हायर पावर है जो उनसे मिरेकल्स करवा रही है? Humphrey said, no, master. हम्फ्री को इन सब चीजों के पीछे एक हायर पावर है. हम्फ्री वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो सिंपली ही सेड कि नो मास्टर, मुझे नहीं पता. फिर काफी टाइम निकल गया हम्फ्री जी की नेक्स्ट विजिट टू भगवान महर्षि. फिर वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के अरुणाचला पर्वत की उस केव पे गए. उनको देख के रमन महर्षि ने उनको बहुत अच्छी सी स्माइल दी, which was not a surprise for him. वो अंदर गए, उनके साथ बैठे, वहां पे बैठे, उन्होंने प्राइवेट में उनसे कुछ बातें करी. जैसे रमन महर्षि को कभी भी कुछ नहीं भूलता था, तो ही वाज, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम्फ्री वेंट टू रमन महर्षि, तो उनको याद थे कि ये हम्फ्री है, क्योंकि उनके पास, रमन महर्षि के पास हर कोई एक खुली किताब की तरह जाता था और भगवान की सिर्फ एक नजर ही किसी पे पढ़ने पे उनकी लाइफ चेंज हो जाती थी. और जैसे उन्होंने हम्फ्री को देखा तो रमन महर्षि सिंपली सेड, अभी तक उनके अंदर कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. द मोमेंट ही सॉ हम्फ्री, रमन महर्षि इमीडिएटली सेड
कि आपने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है एंड यू आर हंग्री. And he immediately asked, Raman Maharishi immediately asked his one of his disciples to bring the food for Humphrey. Food में चावल, घी और fruits आए. And he was not used to eat food with fingers because जैसे इंडिया में लोग फिंगर्स के साथ खाते, तो फिर रमन महर्षि को पता था, तो फिर उन्होंने उनके लिए एक स्पून मंगवाया. And that spoon was made of coconut. And the moment he was having his food, and साथ के साथ वो लोग आपस में बातें कर रहे थे. And रमन महर्षि उनको बीच बीच में स्माइल्स दे रहे थे. And हम्फ्री वाज लाइक कि भगवान की ब्यूटीफुल स्माइल को इमेजिन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. He was so happy with his smile that he was like, he is so graceful कि वो उनसे बात भी कर पा रहे हैं, रमन महर्षि उनको आंसर्स भी दे रहे हैं. He was giving him the beautiful smiles also. He was so happy with this thing. Then he had all the food and everything, and he had the coconut milk. He specifically written this, that he had a coconut milk जो बिल्कुल गाय के दूध की तरह वाइट था और इतना मीठा था कि जैसा उन्होंने कभी ऐसा दूध नहीं पिया था जिंदगी में. उन्होंने वो सारा खाना फिनिश कर लिया, बट इवन देन ही वाज स्टिल हंग्री. और भगवान को ये चीज पता थी कि ही इज स्टिल फीलिंग हंग्री, और उन्होंने फिर से और खाना मंगवाया उनके लिए. एंड हम्फ्री अपोलोजाइज्ड टू भगवान फॉर जैसे वो ड्रिंक करते थे वो. एंड भगवान सिंपली सेड कि नेवर माइंड, वी डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स. क्योंकि हम सबकी हैबिट है कि हम अगर पानी पीते हैं तो ग्लास को हम ऊपर से करके नहीं पीते हैं. वी जस्ट अपना माउथ उसके साथ लगा के वी ड्रिंक. तो देन रमन महर्षि सेड कि हिंदूज में ये प्रैक्टिस ऐसी नहीं है, क्योंकि हम एक ग्लास से पानी लेके उसको ऊपर से पी लेते हैं, अपना माउथ टच नहीं करते, सो दैट उस पर्टिकुलर ग्लास से और भी लोग पी पाए और इन्फेक्शंस का कोई डर ना हो. दिस इज व्हाट रमन महर्षि एक्सप्लेन टू हम्फ्री, बिकॉज ही अपोलोजाइज जिस तरह से उन्होंने मुंह लगा के ग्लास को पानी पी लिया था. देन जब वो खाना खा रहे थे तो ही वाज सिंपली रिलेटिंग हिज पास्ट एंड with these things कि he read somewhere that clairvoyance एक चीज होती है. clairvoyance basically जो लोग किसी का भी आने वाला समय देख सकते हैं. कोई अगर उनके सामने बैठा हुआ है तो उनके सामने बैठे बैठे क्लेयरवॉयंट पीपल उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख लेते हैं. तो हम्फ्री रेड समवेयर कि क्लेयरवॉयंस नाम की कोई चीज होती है. एंड ही वाज लाइक, ठीक है, भगवान भी क्लेयरवॉयंट है, तो इसलिए उनको हर चीज का पता चल जाता है कि क्या चाहिए. Then he was sitting with Bhagwan for almost 3 hours, and they were talking, and he was listening to the teachings of Bhagwan. उसके बाद the complete day for Humphrey was very harsh, and because of the too much of summer and गर्मी and everything, he was very thirsty. उन्होंने नहीं पता चलने दिया कि उनको प्यास लग रही है, बट रमन महर्षि knows this, and उन्होंने किसी डिसाइपल को भेज के तो उनके लिए एक नींबू पानी मंगवाया. And then he had it, and he came back out of the cave. जैसे वो बाहर आके हम्फ्री अपने शूज पहनने लगे थे तो रमन महर्षि उनके पास उनके पीछे पीछे आए. एंड ही सेड टू हम्फ्री कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे. रमन महर्षि के लिए जैसे whosoever was going to him as a devotee or as a first timer, उनके लिए हर पर्सन एक खुली किताब की तरह होता था. और हम्फ्री को एक ये गलत नोशन था कि रमन महर्षि क्लेयरवॉयंट है. और जब उनके साथ धीमे धीमे कोई भी इंसिडेंट्स होने शुरू हुए तो देन उनका ये जो एक रॉन्ग नोशन उनके अंदर बन गया था, तो वो चीज खत्म हो गई. उनको फिर ये रियलाइज हुआ कि भगवान सभी के साथ सेम है. किसी के साथ वो लाइक
वो भी से कि कोई उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, everyone is same on a one scale and he is not doing anything specific for any of the persons. There's no thing like favoritism. और उनके पास देन ही ऑल्सो रियलाइज कि उनके पास अगर कोई भी डिवोटी एक भी बार आता है तो वो उनको वो याद रहता है, अगर वो कोई बुक्स भी एक बार भी देख लेते हैं तो उनको वो भी याद रहती हैं. सो he was so much into this thing कि हम्फ्री all of a sudden realized that it was his mistake कि उन्होंने भगवान को क्लेयरवॉयंट बोला. उसके बाद when any matter was Humphrey को जैसे the moment he landed in India, he was having this concept of occultism in him कि उनको ये लगता था कि इंडिया में हर कोई मैजिकल पावर्स के साथ ही हर चीज करता है. लेकिन द मोमेंट ही मेट रमन महर्षि एंड उनके साथ बातचीत करी और उनकी ग्रेस उनको मिला विदाउट इवन अ टॉकिंग ऑल्सो, तो ही रियलाइज्ड दैट कि ऐसी चीजें सबके साथ नहीं होती हैं. ऑकल्ट इज समथिंग डिफरेंट. जो लोग कभी भी सच्चाई या सेल्फ को नहीं जानना चाहते वो उन सब चीजों में होते हैं. एंड द पर्सन लाइक श्री भगवान रमन महर्षि, they are a complete god. So there is nothing like occultism over here with Raman Maharishi. He started coming out of all his wrong notions which he was having when he landed in India. क्योंकि ये सब चीजें कि इंडिया में बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं, ये वेस्ट में वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी कि इंडिया में मैजिकल पावर्स के अलावा कुछ नहीं है. यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ जादू करके लोगों को भटका भी देते हैं, और अगर जो लोग नहीं भटकते तो वो कुछ ना कुछ सीख जाते हैं उससे. तो हम्फ्री वाज इन दैट सॉर्ट ऑफ डिलेमा when he came to India. So later on everything got vanished when he met Bhagwan. उसके बाद हम्फ्री बहुत टाइम तक इंडिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनको रमन महर्षि की कंपनी के साथ, उनके साथ बैठ के, उनके साथ हर चीज पे कन्वर्सेशन करके बहुत कुछ सीखने को मिला. उनकी ग्रेस में रहे वो. उनके जितने भी गलत नोशंस थे इंडिया को और रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो सब चीजें दूर हो गई उनकी. एंड ही वाज सो हैप्पी विद हिज स्टे विद श्री भगवान, और वो बीच बीच में आके उनसे मिलते रहते थे और उनकी ग्रेस लेते रहते थे. फिर उन्होंने अपनी इस कंप्लीट मीटिंग का एक सिनॉप्सिस लिखा अपने फ्रेंड को, हु वाज इंग्लिश में लिखा, जो बाद में अब्रॉड में पब्लिश हुआ ऑन द नेम ऑफ इंटरनेशनल साइकिक गैजेट. और उसमें वो कंप्लीट वो सिनॉप्सिस जो उन्होंने भेजा था, वो सारा कंप्लीट सिनॉप्सिस वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखा गया जैसा हम्फ्री का भगवान रमन महर्षि के साथ कन्वर्सेशंस हुए थे. दिस इज अ क्वाइट अ बिग लेटर, एंड अगर मैं इसको अगर वर्ड टू वर्ड अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो इट विल टेक अ सुपर लॉन्ग टाइम. मैं इसका एक छोटा सा जिस्ट बता देती हूँ. He simply wrote that a master is one who has meditated solely on God, has plunged his whole personality into the sea of God and drowned and forgotten it there till he becomes only the instrument of God. And when his mouth opens, it speaks God's words without effort or forethought. And when he raises a hand, God flows again through that to work a miracle. In this first paragraph, this simply means that श्री रमन महर्षि ने सिर्फ अगर मेडिटेशन करी तो सिर्फ भगवान की करी, which is a supreme power, which is behind everything what all is going on in the world. He was so much into the grace of that higher power
कि वो अब फिजिकल बॉडी में, इस दुनिया में भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह थे, कि अगर जब वो कभी बोलते भी थे तो जो शब्द भी निकलते थे वो भगवान के खुद के निकलते थे। अगर वो अपना हाथ भी उठाते थे किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी, तो वो उस सुप्रीम पावर के मिरेकल्स उनके हैंड से फ्लो होते थे। उनके लिए फिजिकल फिनोमिना या साइकिकल फिनोमिना कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी, ना ही कोई क्लेयरवॉयंस या क्लियर ऑडियंस कि लोग क्लेयरवॉयंस व्हिच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, क्लियर ऑडियंस समथिंग कि लोगों को ऑटोमेटिकली अपने कानों में कुछ सुनाई देने लग जाता है, दैट इज नोन एज क्लियर ऑडियंस। विद द मीटिंग विद भगवान उनके ये सब चीजें खत्म हो गई, कि ये सब चीजें इल्यूजन्स हैं। मास्टर टेक्स ऑन दीज पावर्स एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। उन्होंने सिर्फ जो उनका भगवान का अपने बचपन में उनको एक्सपीरियंस हुआ, फिर लेटर ऑन ही वाज इनटू सो मच ऑफ साइलेंस फॉर years and then meditated everywhere, and with all these things he was now simply a complete instrument of God in the form of a physical body. Otherwise he himself was a god. And in this particular letter he wrote so many things. I request all of you to kindly go through this letter. मैं इसका पेज नंबर आपको बता देती हूँ। 119 नंबर पेज से ये लेटर स्टार्ट होता है and it ends at page number 124. एंड में इस पूरे लेटर का जिस्ट ये है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि लाइट कैसे बनी, कलर्स कैसे बने। सिर्फ एक सिंपल एक वाइट लाइट है जिसको आपने प्रिज्म के थ्रू पास ऑन किया तो वो अलग अलग कलर्स में बन गया। आपके पास ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसके ऊपर कुछ फिगर्स बना दिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए, और फिर उसके अंदर आपने एक लाइट ऑन कर दी तो आपको वो अपीयर होना शुरू हो गया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। बट अगर बाई चांस अगर वो लाइट ही ना हो तो हमें तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। सो हियर दिस लाइट इन इटसेल्फ इज अ सेल्फ, जो स्क्रीन पे पड़ती है और हमें दिखाई देता है, और अगर नहीं पड़े तो हमें नहीं दिखा देता, बट स्क्रीन इज स्टिल देयर बिकॉज दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट इज समथिंग which is self, which is being. And these are the examples sir always used to give us in the sessions. And here he simply said that prism भी कुछ नहीं है, वो colorful lights भी कुछ नहीं है. What exactly is the source is that white light, which is the light of being, which is the light of consciousness. So he wrote this beautiful letter to one of his friend in abroad, and it was got completely published word to word as it is. I request all of you to kindly please go through this letter, and this is a very amazing letter. And उसके बाद ये हुआ कि हम्फ्री वहाँ पे वेलोर में अपनी उस पुलिस सर्विस में बहुत टाइम तक तो नहीं रह पाए। रमन महर्षि ने उनको एडवाइस किया कि वो मेडिटेशंस अटेंड करते रहें और अपने सेल्फ इंक्वायरी भी करते रहें अपनी जॉब के साथ, लेकिन अपनी जॉब ना छोड़ें। For few years, for some years, Humphrey did that along with his service. He was meditating, he was doing the self-inquiry also, and later on he got retired. He was already Catholic, और उनको और भी बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में उनको नॉलेज थी, बट उन्होंने किसी भी चीज को चेंज करने की कोशिश नहीं करी। एंड उसके बाद वो वापस इंग्लैंड चले गए, जहाँ पे जाके उन्होंने अपनी फैमिली नहीं, अपनी लाइफ नहीं, कुछ नहीं देखा, एंड ही सिंपली went to a monastery in England because he was so much impressed with Bhagwan's grace, his knowledge, his everything, that he left all the worldly stuff and moved to a monastery and spent the rest of his life over there meditating to the supreme power. I'm just ending this story over here, but I really request all of you to kindly go through this letter. You will get the very good things out of it. I even read this particular letter twice, and
that's the perhaps that's why I was able to give you the gist of it. Lekin please do go through this letter. I sum up over here. Thank you, everyone.